Start. Hi students, good morning children. Okay, today for 5th standard we are doing the lesson. Okay, before that I want to talk with you something about the lockdown. I hope you got bored in the lockdown period, right? सब बोर हो गए होंगे. तो अभी हम थोड़ा पढ़ाई शुरू करने वाले हैं. ओके, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एक आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम नेचर के करीब आ गए थे, राइट? बिकॉज नो व्हीकल्स वेर देयर, ओके, नो नॉइज पॉल्यूशन, नो एयर पॉल्यूशन, राइट, एंड नो लैंड पॉल्यूशन. वी आर ऑल हियरिंग द वॉइस ऑफ द chirping of birds, right? The noise of the air, right? Everything. We became very closer to the nature. Okay? तो वैसे ही नेचर के बारे में अभी हम लेसन करने वाले हैं. That is boundless nature. Lesson number 1. Unit 1. Boundless nature. Okay. So, boundless. What is the meaning of boundless? Boundless means limitless. नेचर का कोई लिमिट होता ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड बाउंडलेस नेचर. ओके, इन द बुक पेज नंबर 1 there is one activity, pre-task is given. Nature is boundless in its rich resources. Man uses these resources to create wonders. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. अभी पार्टनर तो नहीं मिलेंगे आपको, तो ये काम आपको अकेले करना है. आपको क्या करना है? जो रिसोर्सेस यानी नेचर में से हमको जो कुदरती जो चीजें मिलती है उसका 5 names. You have to write the names of 5 natural resources. In your CW. Okay? This is one homework for you. You just think over. जितना भी आता है, मैंने 5 लिखा है यहाँ पर, आपको जितना भी आता है उतना नेचुरल रिसोर्सेस आप उसका 5 नेम्स लिखना है. ओके? डोंट डिस्कस विद योर पार्टनर या योर को स्टूडेंट्स, बट आप सर्च करो, अपने आप से सोचो और उसके बारे में लिखो, और अथवा उसका 5 नेम्स लिखो. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी. और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड दैट इज द समर सीजन. ओके, तो समर सीजन में हमने कौन से फ्रूट यूज करते हैं हम लोग? कौन सा फ्रूट आपने ज्यादा खाया होगा? विच फ्रूट यू एट द मोस्ट ड्यूरिंग द समर सीजन? यस, the fruit is the mango, the king of all fruits, right? Everybody likes the mango, right? And everybody knows about the different kinds of mangoes, right? So, अभी हम मैंगो के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं. तो वैसे एक फ्रूट है जिसका नाम है ऑरेंज. ओके, तो ऑरेंज के बारे में हमारा ये लेसन है. ओके, एक्टिविटी 2, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. First of all, I will read the lesson paragraph wise, and then I will explain you the whole lesson. Okay? So, the story of an orange. Orange means narangi. You know everybody, and everybody likes the orange. It is a citrus fruit. खट्टा होता है. जो भी खट्टे fruits होते हैं उसको बोलते हैं citrus fruits. So, nobody knows exactly from where the orange came. Though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is grown in most of the warmer parts of the world. The Greeks and Romans knew about the orange. It is possible that
the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. Today, the orange is the most important fresh fruit in international trade. The three chief kinds of oranges are the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. Of these, the sweet orange is the most important. First, I have read the 3 paragraphs. Now, I will explain you the meanings of the 3 paragraphs. First, nobody knows exactly. किसी को पता नहीं है कि exactly orange कहाँ से आया था. दो एक मान्यता है. It is a belief that Southeast Asia is thought to be its first home. Orange का first home यानी उसका originate कहाँ से हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया, ऐसा माना जाता है. इट इज अ बिलीफ. बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अभी टुडे यानी अभी अभी वो सब जो भी गर्म देश है, वार्मर कंट्रीज है, वहां पर ज्यादा उसका ग्रोथ होता है. द ग्रीक पीपल, रोमन पीपल न्यू अबाउट द ऑरेंज. ग्रीक पीपल बहुत एंशियंट पीपल है, रोमन्स भी बहुत एंशियंट पीपल है, तो उनको ऑरेंजेस के बारे में ज्यादा पता है. इट इज पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरीड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप. ऐसा पॉसिबल है कि ऑरेंज इंडिया से वेस्टर्न एशिया में लेके गए हैं और यूरोप में भी उसको एक्सपोर्ट किया गया है. Today, the orange is the most important fresh fruit in the international trade. पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में ऑरेंज का इम्पोर्टेंट प्लेस है. सब जगह पर उसका एक्सपोर्ट होता है, सब जगह पर ऑरेंजेस बिका जाता है. इट इज सोल्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. राइट? I hope you have understood the 2 paragraphs. Now we pass on to the 3rd paragraph. Now there are mainly 3 kinds of oranges. First, sweet or common orange. Sweet जो common orange आप लोग जो देखते हैं वो है. Second one is the mandarin orange. और third is the sour or bitter orange. Of this, the sweet orange is the most important. तीनों में से हमको कौन सा पसंद ज्यादा होता है? जो मीठा होता है वो. राइट? नाउ द स्वीट और कॉमन ऑरेंज तो हमको देखने को मिलता है सब जगह पर. नाउ व्हाट इज मैंडरिन? मैंडरिन ऑरेंज जो है वो स्वीटर भी है, दिखने में फ्लैट होता है. कैसा होता है? फ्लैट होता है. एंड थिन, उसका स्किन जो है थिन होती है और लूज होती है, तो easily we can peel off the orange. That is called the mandarin orange. Now, sour or bitter orange थोड़ा कड़वा होता है. It is bitter in taste. और उसको हम खा नहीं सकते हैं ज्यादा. Okay. So of this, ज्यादा important, ज्यादा सबको liking कौन सा ऑरेंज होता है? स्वीट ऑरेंज. स्वीट ऑरेंज इज लाइक बाय एवरीबडी. हमको भी मीठा ही ऑरेंज पसंद होता है. राइट? नाउ 4th paragraph. It is after 3 years that the tree bear fruits. अभी ऑरेंज जो है उसको फ्रूट आने में 3 साल निकल जाता है. It takes 3 years to bear the fruits. Right? So, an interesting kind of sweet orange is called the blood orange. दूसरा एक ऑरेंज है, उसको बोलते हैं ब्लड ऑरेंज. उसका अंदर एकदम, उसका जो कवरिंग अलग ऑरेंज जैसा होता है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है पल्प, इट इज ब्लड रेड इन कलर. वो भी एकदम इंटरेस्टिंग है और स्वीट ऑरेंज बोला जाता है. राइट? इट्स पल्प, उसका अंदर का पल्प इज डीप रेड इन कलर, एकदम लाल कलर का होता है. एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटरेनियन रीजन. मेडिटेरियन रीजन यानी जो जहां पर वार्मनेस ज्यादा होता है, उस रीजन में वो ज्यादा उसका ग्रोथ होता है. द टेम्पल इज एन ऑरेंज विद अ
थिन लूज स्किन, उसका जो आउटर कवरिंग है, टेम्पल मीन्स आउटर कवरिंग, वो जो है ऑरेंज कलर का ही होता है, और उसका स्किन कैसा होता है, लूज, थोड़ा लूज होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैंडरिन एंड स्वीट ऑरेंज। ब्लड ऑरेंज जो है वो किसका मिक्सचर है, मैंडरिन का और स्वीट ऑरेंज जिसका मिक्सचर होता है, राइट। नाउ दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ इज ओवर। नाउ पेज नंबर 2, the sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. Okay, sour orange जो है वो कहाँ पर उसका ग्रोथ है, स्पेन में। It is a foreign country, right? The chief use of this orange is to make marmalade, since it is too bitter to be eaten as a fruit. तो sour orange जो है ना, उसे हम डायरेक्टली खा नहीं सकते, राइट? तो उसको, उसका जैम आप बोलते हो, जैम जाते खाते हो ना, ब्रेड पर लगा के जैम खाते हो ना, वो जैम बनाने में ये जो सॉर ऑरेंज जो है वो यूज होता है। सो इट इज मर्मलेड। मर्मलेड मीन्स ऑरेंज में से जो पल्प निकाल के उसका जैम बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द मर्मलेड। इट इज टू बिटर, कड़वा होता है, इसलिए उसको उसके अंदर चाशनी और सब डाल के जैम बना सकते हैं। तो सॉर ऑरेंज जो है, जो स्पेन में ग्रो होता है, दैट इज यूज्ड फॉर ओनली मेकिंग द जैम, which the children likes the most. Orange is a clean fruit, very clean fruit. Okay, anyone who touches it only touches the outer covering, which can be easily peeled off. The thick, oily and bitter skin does not allow insects to get into the orange. Oranges therefore are in demand all over the world. Orange is a clean fruit. Orange अंदर हम टच नहीं कर सकते। Why? Because it is covered with the outer skin. So it is very clean, pure, right? तो उसको हम जब पील करते हैं ना, उसका जो छिलका निकालते हैं, तभी हम उसको अंदर टच कर सकते हैं, राइट? तो उसका जो थिक, ऑयली एंड bitter skin does not allow insects to get into the orange. उसका जो thick skin है, oily है, उसका skin थोड़ा oily दिखेगा आपको, and bitter, उसका skin जो है वो हमको थोड़ा कड़वा लगेगा। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर कोई कीड़ा घुसेगा नहीं। No insects are allowed to get into the oranges. Oranges therefore in demand all over the world. इसीलिए ऑरेंजेस जो है सब जगह पर उसका बहुत डिमांड होता है, राइट? सो ऑरेंजेस हम सबको पसंद ही है, राइट? और उसका ट्रेड ज्यादा होता है, सब कंट्रीज में उसका ट्रेड ज्यादा होता है। और मैंने बोला आपको 3 काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर देयर, स्वीट ऑरेंज, मैंडरिन ऑरेंज एंड सॉर और बिटर ऑरेंज, राइट? देन जो स्वीट ऑरेंज है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस टू ईट, वी लाइक इट वेरी मच। मैंडरिन वो भी अच्छा है खाने के लिए, बट सॉर ऑरेंज जो है, जो स्पेन में से हमको मिलता है, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द जैम ओनली, राइट? बिकॉज वी कांट ईट इट डायरेक्टली, राइट? और मैंने बोला कि ऑरेंज इज वेरी क्लीन फ्रूट, so everybody likes that fruit very much. So for today this much is over. In the next class we will discuss the hard words, keywords and the exercise. Thank you very much. Take care of yourself.